آج ہم پڑھیں گے زبان اور زبان سے متعلق جتنے بھی خاندان ہیں۔ زبان کسے کہتے ہیں؟ آواز اور الفاظ کا مجموعہ ہے۔ زبان ہمارے احساسات، جذبات و خیالات کو ادا کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ زبانوں کے خاندان۔ زبانوں کے 8 خاندان ہیں۔ پہلا خاندان سامی۔ سامی کو 2 بھاشاؤں میں بانٹا گیا ہے، عربی اور عبرانی۔ ہند چینی۔ تھرڈ ہے دراوڑی۔ دراوڑی میں یہ بولیاں ہیں: تمل، تیلگو، کنڑ، ملیالم۔ پھر ہے منڈا۔ ففتھ ہے افریقہ کی باتون۔ سکستھ ہے امریکی۔ سیونتھ ملایائی۔ 8 ہند یورپی خاندان۔ اب ہند یورپی ہماری جو اردو اور ہندی زبان ہے وہ ہند یورپی خاندان سے آئی ہے۔ ہند یورپی خاندان پھر آگے چل کر بٹ گیا ہند آریائی دور میں۔ ہند آریائی دور کو 3 ادواروں میں تقسیم کیا جاتا ہے: قدیم ہند آریائی دور، جو 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک ہے۔ پھر ہے وسطی ہند آریائی دور، جو 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک ہے، لگ بھگ 1500 سال۔ جدید ہند آریائی دور، یہ 1000 عیسوی سے تاحال تک ہے، یعنی کہ اب ورتمان تک۔ اب ہم پڑھیں گے قدیم ہند آریائی دور کے بارے میں۔ قدیم ہند آریائی دور کے منازل: ویدک منزل، جس میں رگ وید، اتھر وید، یجر وید اور سام وید۔ پھر عہد باٹنی کی منزل، باٹنی کی اشٹ ادھیائے اور پتنجلی کی مہا بھاشیہ۔ پھر ہے رزمیہ منزل میں مہابھارت۔ دینوی منزل میں سنسکرت کو سرکاری زبان بنا دیا جاتا ہے یا بن جاتی ہے۔ ٹکسالی منزل میں ہے عوامی بول چال سے دوری۔ پروفیسر گیان چند جین کے مطابق ہند آریائی زبان کے 2 ادوار ہیں: وہ قدیم ہند آریائی کے 2 ادوار ہیں، جس میں ویدک سنسکرت آتا ہے اور دوسرا کلاسیکل سنسکرت۔ اب ہم پڑھیں گے وسطی ہند آریائی دور۔ پہلے ہم نے قدیم ہند آریائی دور پڑھا، اب ہم پڑھیں گے وسطی ہند آریائی دور، جو 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک ہے۔ اس کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور میں ابتدائی پراکرت، جسے فطری زبان کہا جاتا ہے، فطری زبان یعنی کہ جو نیچرل ہوتی ہے۔ پہلی پراکرت ہے آئی ہماری پالی۔ پالی کو قدیم مگدھی بھی کہا جاتا ہے، جس میں بدھ اور جینوں کی مذہبی کتابیں لکھی گئیں، اور اشوک کے لاٹوں پر بھی پراکرت کے سب سے قدیم نمونے ملتے ہیں۔ اشوک کے لاٹے ہوتے ہیں جو اشوک کے شیلالیکھ یا اشوک کے استمبھ، ان پر بھی پالی بھاشا ہی لکھی گئی ہے۔ اس کا دوسرے دور میں اس میں ادبی پراکرت کا دور آیا۔ اس میں پہلی تھی مہاراشٹر، جنوب کا علاقہ پورا، جنوب دکشن کو کہا جاتا ہے۔ پھر شور سینی، جو متھرا کا علاقہ تھا۔ تیسری تھی پھر ماگدھی، جو مگدھ کا، جو جنوبی بہار یعنی کہ دکشنی بہار۔ فورتھ ہے اودھ مگدھی، جس میں اودھ اور مشرقی یوروپیہ پورب کو کہا جاتا ہے، پورب۔ پشاجی، جس میں کشمیر اور پنجاب کا علاقہ آتا ہے۔ تیسرا دور
تیسرے دور میں آئی अपभ्रंश का दौर। अपभ्रंश को बिगड़ी जबान कहा जाता है। ये 5 हैं और इनकी बोलियां 5 हैं। पहली बोली शूरसैनी अपभ्रंश, और शूरसैनी अपभ्रंश की बोलियां हैं खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी जबान में कहा जाता है। दूसरा मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश की बोलियां हैं बंगाली, आसामी, उड़िया, मगधी, बिहार की बोली। हड़ है अवध मगधी, जो बिहार से इलाहाबाद तक है। मगरबी हिंदी की बोलियों में आती हैं पहली अवधी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी। चौथी महाराष्ट्र, जिसका इलाका बरार है। मराठी। पांचवी है प्रचंड या केकई, जिसका इलाका सिंध है। की बोलियां हैं सिंधी और लहंदा। ये हमने वस्ती हिंद आर्याई का दौर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जदीद हिंद आर्याई दौर। जदीद हिंद आर्याई दौर जो शुरू होता है 1000 ईस्वी से अभी तक, यानी कि वर्तमान तक। इसमें है शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की जबानें, जो है पहली लहंदा, सिंधी। फिर जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई जबानें, मराठी। मशरकी हिंदुस्तान की जबानें, मशरकी हिंदुस्तान की जबानें यानी कि पूर्व भारत की, आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी। बिहारी की बोलियां हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी। फिर है मशरकी हिंदुस्तान की जबानों से गहरा रिश्ता रखने वाली जबान, मशरकी हिंदी। की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मध्य देश की खास जबानें, मगरबी हिंदी। की बोलियां हैं इसमें खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। दूसरी हरियाणवी। हरियाणवी की भी 2 बोलियां हैं, जाटो और बांगड़ो। तीसरी ब्रज भाषा। चौथी कन्नौजी। पांचवी बुंदेली। ब्रज भाषा कन्नौजी और बुंदेली में भाषा में ऊ का यूज होता है, और खड़ी बोली और हरियाणी में आ का यूज होता है। ये इतना बड़ा चार्ट पढ़ना मुश्किल रहेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में एक चार्ट तैयार किया है। जबानों के खानदान में हम खाली हिंद यूरोपीय के बारे में पढ़ेंगे। हिंद यूरोपीय में हिंद आर्याई खानदान आएगा। हिंद आर्याई खानदान को 3 द्वारों में बांटा गया है। कदीम हिंद आर्याई जो 500 कबल मसीह से 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक, इसमें जो है वो वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत। इसके बाद वस्ती हिंद आर्याई जो 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक, इसे तीन दौर में बांटा गया है। पहली प्राकृत में बुद्ध और जैनियों की धार्मिक किताबें लिखी गईं, और अशोक के लाटों पर भी पाली ही लिखी गई। लाटो मतलब शिलालेख। प्राकृत में ये इन भाषाओं को शामिल किया गया। शूरसैनी मगधी प्राकृत, अवध मगधी प्राकृत, महाराष्ट्र प्राकृत और पिशाची प्राकृत। फिर तीसरे दौर में अपभ्रंश का दौर आया। अपभ्रंश को बिगड़ी जबान कहा गया है। इसको भी बांटा गया है 5, इसमें शूरसैनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, अवध मगधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और शुमाल मगरबी अपभ्रंश। शूरसैनी अपभ्रंश की बोलियों को भी बांटा गया है। शूरसैनी अपभ्रंश की बोलियां हैं खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती। इसके बाद जदीद हिंद आर्याई दौर। जदीद हिंद आर्याई दौर है 1000 ईस्वी से ताहाल वर्तमान तक। इसमें मगरबी हिंदी को तवज्जो दी गई है। मगरबी हिंदी की बोलियां हैं 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली
या हिंदुस्तानी बोली भी कहा जाता है खड़ी बोली को। दूसरी ब्रज भाषा, तीसरी कन्नौजी, चौथी बुंदेली, पांचवी हरियाणवी। हरियाणवी के दो बोलियों में बांटा गया है, जाटो और वांगड़ू। तो ये जबानों का खानदान इतना ही था। ये जो चार्ट है ये इम्पोर्टेंट है। टीजीटी उर्दू, डीएसएसबी टीजीटी के उर्दू के लिहाज से ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम ये कुछ माहिर लिसानियात हैं और उनकी तसनीफ पढ़ेंगे जो उर्दू जबान से ही मुतालिक है। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान की तसनीफ थी मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू। मोहिनुद्दीन कादरी जोर की हिंदुस्तानी लिसानियात। हाफिज महमूद शीरानी की पंजाब में उर्दू। शौकत शौकत हरियाणवी शौकत सब्जवारी की है उर्दू लिसानियात। नसीरुद्दीन हाशमी की है दक्कन में उर्दू। और सैयद सुलेमान नदवी की ये इम्पोर्टेंट है नकूशे सुलेमानी। मौलवी अब्दुल हक दहलवी उर्दू जबान में अदब। मिर्जा खलील अहमद बेग उर्दू की लिसानी तश्कील। एहतशाम हुसैन के हैं हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। तो ये कुछ माहिर लिसानियात हैं और उनकी तसनीफ है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर कवर करेंगे।